He is Alpha and the Omega, he is the beginning and the end. वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत वही है. Amen. We welcome you all to this wonderful Christmas service. क्रिसमस की सुंदर सभा में अब सभी का हम स्वागत करते So we हैं. have been waiting from January 1st till now to celebrate Christmas. जनवरी के पहले तारीख से अब तक हम रुके हुए थे क्रिसमस को मनाने के Finally the लिए. Christmas has walked in. और अभी क्रिसमस की शुरुआत हुई है. Amen. When Amen. Christ comes in us, जब मसीह हमारे अंदर आते हैं, we get a new hope. हमें एक नई आशा मिलती है. The hope that has been lost, वो जो आशा हमने खोई है, we get that hope and हमें confidence in Christ Jesus alone. मसीह में ही केवल हमें वो खोई हुई आशा प्राप्त होती है. Somebody asked me why Jesus came. किसी ने सवाल पूछा कि यीशु क्यों आए. It was a big question for everyone. वो एक बड़ा सवाल सब लोगों के मन में You know, है. once in a year in the whole world, पूरे विश्व में साल में एक बार the stars started blinking. तारे चमकने लगे. Once in a while in the whole world, once in a year in the whole world, पूरे संसार में, जगत में साल में एक बार you see the entire world or entire country, nation is decorated. तो हम देखते हैं कि पूरे देशों में, राष्ट्र में सब लोग जो है सजाते हैं Saying that this is Christmas. और ये कहते हुए कि ये क्रिसमस है. In India, भारत देश में, in our country, हमारे देश में, only once in a year, only in India, we have that lightings. और साल में एक ही बार है जो हम जो है लाइटिंग्स लगाते But हैं. when we talk about Christmas, लेकिन जब क्रिसमस की बात होती the है, entire world is lit up with light. देखो पूरे विश्व में जो है सब जगह पे बहुत सारे जो है लाइट्स लगाते हैं. Why? क्यों? Because it shows that Jesus is the light of the world. क्योंकि ये बताता है कि यीशु मसीह जगत का ज्योति है. Amen. Somebody asked me why Jesus came. किसी ने सवाल पूछा कि यीशु मसीह जगत में क्यों आए. I told them he came to erase the misconception that we have in our hearts. तो मैंने उन्हें कहा कि हमारे दिलों में जो गैर समझ है उसे मिटाने के लिए यीशु मसीह आए. Christ always comes where the confusion is there to remove that confusion. देखो जहां पर भी कोई गड़बड़ी चलती है वहां पे यीशु मसीह आते हैं उन गड़बड़ियों को निकालने Only के लिए. one God in the whole world, he said, I am Emmanuel, I am God with us, with you. एक ही परमेश्वर है जो विश्व में ये कहा है, ये वाक्य कहा है उन्होंने कि मैं इम्मानुएल ईश्वर हूं, मैं तेरे संग हूं. Hallelujah. What is the misconception in the whole world about God? देखो परमेश्वर या ईश्वर के बारे में लोगों के अंदर ये कौन सी गलत फहमी है. You know, when you ask the people, जब लोगों को पूछते हैं they will say like this. वो ऐसे कहते हैं, Some believe God came to destroy and take pleasure in the pain that you are going through. तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे जो दर्द से तुम गुजरते हो उस दर्द को मिटाने के लिए और वो जो है प्रभु को खुशी मिलता है. खुशी Pleasure. मिलती है. Hallelujah. He takes the pain in your pleasure. तुम्हारे दुख में उन्हें खुशी मिलती है. Hallelujah. God did not come to take a pain in your pleasure. देखो ईश्वर इसीलिए नहीं उतर आया तुम्हारे दुखों में आनंद मनाने के You know, a लिए. lot of people they say this, something happened in life, the misconception is why God is like this. और कभी किसी के जीवन में अगर कुछ ऐसी गलत बात घटती तो वो कहते हैं कि प्रभु ऐसे क्यों है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. But God is not like that. That's the beauty of Bible. तो बाइबल की सुंदरता यह है कि प्रभु ईश्वर ऐसा नहीं है. That is the beauty of Jesus Christ. God is not like that. यीशु मसीह की तो बस सुंदर बात यही है कि वो ऐसे नहीं सोचते. Jesus came into this world यीशु मसीह इस दुनिया में आए to teach the truth. सत्य को सिखाने And के he लिए. was a living example about who God is. वो हमारे लिए एक जीवित कारण बना और उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर सचमुच में कौन है, कैसा है. Jesus never came to give you pain. यीशु तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं आया, He पीड़ा देने never के लिए came आया. to take the pleasure what you are going through in your mind and the stress that you have in your heart. देखो तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में जो तनाव से तुम गुजर रहे हो या जो पीड़ा से गुजरते हो उसमें वो खुशी बनाने के लिए वो नहीं आया. Jesus came to remove the pain and give joy to your lives. तो यीशु मसीह इसीलिए इस जगत में आए तुम्हारे पीड़ा को निकालकर तुम्हारे जीवन में आनंद देने के He लिए. was teaching the truth. He was living an example about who God is on this earth. और वो सच्चाई से
कैसे जी रहा था और ये हमें बताने के लिए आए कि सचमुच में ईश्वर कौन If you है। turn your Bible to John chapter 1 verse 18, यूहन्ना का पहला 18 में अगर आप देखोगे, the Bible says, no man has seen God at any time. वचन कहता है कि किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा The है। only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. और Wow. केवल एकलौता पुत्र जो पिता की गोदी में है, उसी ने उसे प्रकट किया। No man has seen God. तो कोई भी परमेश्वर ने प्रभु को नहीं देखा है। No man has seen God at any time. देखो, Come on. कोई भी किसी भी व्यक्ति ने कभी परमेश्वर को देखा नहीं But the है, only begotten Son लेकिन केवल वो एकलौता who पुत्र was in the bosom of the Father God जो पिता की गोद में था 2000 years ago, 2000 साल पहले, when the world was in chaos, जब पूरे संसार में गड़बड़ी चल when रही the थी, people were in guilt and condemnation, जब लोग अपने आप को दोषी समझ रहे थे और दोषी and समझ there रहे was थे no redemption for their sin, और उनके पापों के लिए कोई छुटकारा नहीं there was था no way out, only judgment everywhere. और कोई मार्ग या रास्ता नहीं, केवल न्याय ही न्याय था। And the Father God, और पिता परमेश्वर the only begotten Son in the bosom of the Father और God, पिता की गोद में वो एकलौता बेटा His name is Emmanuel. जिसका नाम है इमानुएल, He delivered to us. उसने हमें दे दिया। And when He came on this earth, और जब वो इस धरती पे आए, there was a hope, वो आशा आई, there was joy, आनंद आया, there was faith, विश्वास आया, there was deliverance, छुटकारा आया, there was healing, चंगाई there was हुई, miracle, चमत्कार हुए, death came back to life, मुर्दे जी उठे। supernatural things started begin to happen from heaven on earth. तो बहुत ही अलौकिक बातें होने लगी स्वर्ग से पृथ्वी पर। Hallelujah. It is the Father God who declared Jesus the Son God on this earth to deliver you and me from the bondage of sin and calamities. वो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए वो एकलौता बेटा, उनका पुत्र यीशु मसीह दिया ताकि हमारे सारे जो है पीड़ा से हम जो है निकल आए। Hallelujah. Jesus was God in skin. तो यीशु मसीह ईश्वर थे, Means Jesus was God in flesh. यानी यीशु मसीह ने देह रूप धारण किया। Means God no more. He doesn't want to watch you from the distance. यानी अभी परमेश्वर तुम्हें दूर से नहीं देखना चाहते हैं। Hello. Are you there with me? क्या आप समझ रहे हैं? If you have that, you have a misconception. अगर आप के अंदर ऐसा है तो आप गलत फहमी है। He said, I am Emmanuel. उसने ये कहा, मैं इम्मानुएल I am the हूँ। God who will not watch from distance. मैं वो ईश्वर नहीं जो दूर से तुझे देखता हूँ। I am Emmanuel God. I will be with you मैं always. इम्मानुएल परमेश्वर हूँ, तेरे साथ हमेशा रहूंगा। He is with you in the emergency ward. तुम्हारे इमरजेंसी वार्ड में भी वो तुम्हारे साथ में He is with you है। in the lowest part of your life. जब तुम्हारे जीवन के निचले स्थानों में तुम हो, उस परिस्थिति में हो, तब भी वो तुम्हारे The साथ में है। message of Christmas is क्रिसमस का संदेश ये है, Jesus loves us. That's all. यीशु हमसे बेहद प्रेम करते हैं, उतना ही। If you want to know God, अगर तुम परमेश्वर को जानना चाहते हो, take a look at Jesus. यीशु को देखो। Jesus is how God loves. तो कैसे जैसे पिता प्रेम करता है वैसे यीशु है। Jesus is how God loves. जैसे पिता प्रेम करता है वैसे यीशु Jesus भी। is how God thinks. जैसे पिता सोचता है वैसे यीशु सोचते हैं। Jesus is how God feels. और यीशु मसीह को, पिता को कैसे महसूस होता है वैसे यीशु को भी महसूस If you होता see है। Jesus, अगर यीशु को देखते you हो, can see the love of God. पिता का प्रेम उसमें दिखाई देता If है। you see Jesus, अगर यीशु को देखोगे, you think how God thinks about you. परमेश्वर कैसे आपके बारे में सोचता है, How God feels about you. परमेश्वर कैसे आपके बारे में सोचता है। Are you there with me? The real Christmas is सच्चा क्रिसमस ये है, Jesus revealing the heart of the Father God to you and me. पिता यीशु मसीह पिता का प्रकट करता है तुम्हें और मुझे। If you don't get this, अगर इस बात को नहीं समझोगे you are a blamer of God. तुम प्रभु पर दोष लगाओगे। We heard about the scammers. हमने स्कैमर के बारे में सुना है We go through the scammings. और हम उसके बारे में जानते हैं, But we don't want to be a blamers of God. लेकिन हम प्रभु पे दोष लगाने वाले लोग नहीं बनना चाहिए। Hallelujah.
You know, one of the beauty of Jesus, जानते हो यीशु की सुंदरता क्या है? Jesus believed in you and me. यीशु ने तुम पर और मुझ पर विश्वास किया है, Jesus always is going to believe you and me. और यीशु हमेशा तुम्हें और मुझ पर विश्वास करेंगे। Jesus also believed on his time on this earth. और यीशु मसीह ने अपने समय पर भी विश्वास किया जब वो धरती पे थे। Whoever people in the society has been rejected, जो भी समाज में तिरस्कार, जिनका तिरस्कार किया गया है या टुकराए हुए हैं, he was always with them. ऐसे लोगों के संग वो He हमेशा never थे। gave up on them. वो कभी उन पर हार नहीं माना One day उन्होंने। there was a man called Zacchaeus. एक दिन एक आदमी था जिसका नाम था जकायस। You know, he was a tax collector. वो चुंगी लेता था, Hallelujah. But one day Jesus walked to his house और यीशु मसीह एक दिन उनके घर आते हैं and he is eating the food with them. और उनके साथ में खाना खा रहा And you है। know what the outside society said? और बाहर समाज के लोग जानते हो क्या Oh, बोलने लगे? Jesus is sitting with the sinners and the publicans and having food. देखो यीशु मसीह ये सारे पापियों के साथ में बैठकर खाना खा रहा है। Hallelujah. That is a misconception people have about Jesus. यीशु के बारे में लोगों के अंदर ये गलत फहमी है। Hallelujah. You cannot have misconception about Jesus यीशु के बारे में आप गलत सोच नहीं रख सकते हो, because Jesus is the lover of your soul. क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे प्राणों के प्रेमी हैं। The misconception in the world is अभी पूरे संसार में जो लोगों के अंदर गलत फहमी you है, cannot please God. तुम प्रभु को खुश नहीं कर, प्रसन्न नहीं कर सकते You हो, cannot love God. प्रभु से प्रेम नहीं कर You सकते, cannot go near to God. प्रभु के करीब नहीं जा If you सकते। go to near to God, you will भस्म हो जाएगा. अगर तुम प्रभु के करीब जाओगे तो भस्म हो जाओगे, Third eye will be opened up. तीसरी आंख खुल जाएगी, Fourth hand will come upon या you. चौथा हाथ तुम पर उतर And the आएगा, 10th avatar will destroy you. नहीं तो 10 अवतार तुम्हें नाश करेगा। The misconception is not about how God is angry. The misconception is people think about God is a judgmental God. तो सबके अंदर एक गलत फहमी ये नहीं है कि प्रभु तुमसे नाराज, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि प्रभु एक ऐसे ईश्वर है जो दंड देने वाले परमेश्वर है। Hallelujah. When you look about Jesus, लेकिन जब यीशु की ओर he's देखते sitting हैं, with the sinners. वो पापियों के साथ खड़े रहते He's हैं, loving them. उनसे प्रेम करते He's हैं, enjoyable. वो सबके साथ में आनंद He's मनाते a हैं, peace-loving God. क्योंकि वो शांति के दाता है। If God hate the sinners, अगर प्रभु पापियों से नफरत करते हैं, Jesus would have walked and told Zacchaeus, भस्म हो जाओ. तो फिर यीशु मसीह जक्कैस के पास कहता था क्या, जाकर उसके कहता है तो भस्म हो जा। Hallelujah. Did Jesus did like that? क्या यीशु ने ऐसा किया? Jesus was who is in the bosom of the Father, यीशु वही तो था जो पिता के गोद में था, and he declared, Father God declared Jesus to you and me. और वही यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। Or in other words, he sent to you and me, दूसरे शब्दों में वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए भेजा, showing I am God of love. ये प्रकट करते हो कि मैं एक प्रेम का ईश्वर हूँ, I am God of hope. मैं एक आशा देने वाला ईश्वर I am हूँ, God who sustains you. मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो तुझे संभालता है। That means why did Jesus took birth on this earth? उसका मतलब ये कि यीशु मसीह ने संसार में क्यों जन्म लिया? Jesus came to this earth यीशु मसीह इस संसार में आए to express the love of God about God. पिता का प्रेम प्रकट करने के लिए, पिता के बारे में और पिता के प्रेम के बारे में प्रकट करने Now के listen to लिए। this very carefully. अभी ध्यान से इसे सुनिए। Jesus came to express the love of God about God. यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में और उसके प्रेम के बारे में प्रकट करने के लिए आया। Jesus, say with me. Jesus came to, say with me everyone. Jesus came to express the love of God about God. Hallelujah. Now this you always keep it in your Bible. Jesus came to express the love of God about God. देखो यीशु मसीह इसीलिए इस जगत में आए कि वो परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए और उसके प्रेम को दिखाने के लिए आए। And Jesus came to display the love of God. और वो परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए आए। That's what when we read John 3:16 it says so. यूहन्ना का 3:16 ऐसा कहता है। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting.
life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। It doesn't say that God so angry on the world. देखो वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने पूरे जगत से बहुत क्रोध से भर गया था That he will take human flesh and destroy everything. कि किसी मनुष्य को लेकर वो सबको नाश कर देगा। Our God who protects the perishing things. लेकिन हमारा परमेश्वर जो नाश हुए चीजों को की रक्षा करते And also he हैं gives an everlasting life. और वो अनंत जीवन भी देते हैं। Hallelujah. This morning we started the service with Revelation chapter 12 verse 12, right? आज की सुबह की सभा हमने प्रकाशित वाक्य का 12 से शुरुआत किया था। It says, therefore rejoice. Say with me, rejoice. Hallelujah. O heavens, and you who dwell in them. Okay? Woe to the inhabitants of the earth on the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. इसी कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र और तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी Turn to है। somebody and say, थोड़ा ही समय बाकी है. Say with me, Lucifer, थोड़ा ही समय बाकी है. शैतान तेरा थोड़ा ही समय बाकी है, कहो When you धाड़स के साथ कहो, When you डरो address the मत। devil, you take his name. शैतान के बारे में बोलते हो ना तो उसका नाम ले लो। Lucifer, you have a short time. शैतान तेरा समय थोड़ा ही से है। बोलो ना, Lucifer, you have a short time. शैतान तेरे पास अभी थोड़ा ही समय बाकी है। Between Matthew in the Old Testament and the New Testament, पुराने करार और नए करार के बीच there में is 400 silent years. 400 साल के गुप्त साल थे And on that 400 silent years, और 400 गुप्त साल के there लिए was no voice of God. प्रभु की कोई वाणी नहीं There थी, was no prophets. कोई नबी नहीं थे, There was no seers. कोई भविष्यद्वक्ताएं नहीं थे, You know, there was no astrologers. कोई ज्योतिष भी नहीं था, And there was no witchcraft. कोई टोने नहीं थे, There was no power. कोई सामर्थ नहीं था, There was nothing. कुछ भी नहीं It था, was silent. सब शांत। Think about all these things are not there. What will happen to the world? सोचो अगर ऐसी कुछ भी बातें नहीं हो रही तो संसार में क्या No हो रहा होगा? minister, कोई मिनिस्टर नहीं, no king, कोई राजा नहीं, no president. कोई प्रेसिडेंट नहीं, खुद आपका मर्जी. सब अपनी मर्जी पर चल रहे थे, Doing your own will. सब अपनी खुद की इच्छा कर रहे थे। But there was a period. लेकिन एक ऐसा समय आया, Suddenly something happened. अचानक कुछ हुआ। After 400 years, the heaven opened. 400 साल के बाद स्वर्ग खुल गया And there was a voice. और एक वाणी आई। Hallelujah. हालेलुया। After 400 years. 400 साल के बाद। In the coming year, I believe the same voice is going to come to us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले साल में यही वाणी हम सुनाई देंगे। Hallelujah. Everybody was going on their own way, doing their own देखो सब numbers. अपने अपने रास्ता लेकर अपने मार्ग में ही चल रहे थे। But suddenly the heaven opened. अचानक लेकिन स्वर्ग खुल गया। Somewhere God has to stop the human being going towards eternal fire. और कहीं तो प्रभु को लोगों को अनंत काल की आग में जाने से उनको रोकना था। That is how Jesus came into this world इसीलिए तो यीशु मसीह जगत में आए and he stopped people going to hellfire. और लोगों को नर्क की आग में जाने से उन्होंने Do you know रोक डाल दिया। Jesus is the reason for this season? आप जानते हो कि ये पूरे मौसम का जो उत्सव मना रहे उसका कारण यीशु For मसीह the है। reason for this season is ये मौसम का कारण यही है, Jesus. यीशु। If Jesus is not there, अगर यीशु नहीं है this Christmas is of no use. तो ये क्रिसमस किसी फायदे As का like Brother नहीं। Gio was mourning, he was saying like this. जैसे भाई जियो सुबह को कह रहे थे, They had selfish motive. सबके जो अपनी खुद की They were only स्वार्थ था, throwing the chocolate to 1 and 2. सब They're of लोग- their own people, recognized people. सब जो उनके लोगों को जो पहचानने हुए लोगों के उनको ही वो चॉकलेट फेंक रहे But थे। Jesus is not like that. लेकिन यीशु मसीह वैसे नहीं Hallelujah. है। Jesus came to show and express the love of God to everyone, not only one group of people. लेकिन यीशु मसीह हर एक ही झुंड के लोगों को अपना प्यार बयान करने के लिए नहीं, सब लोगों को एक समान प्यार देने के लिए One वो of the आए। beauty of this Christmas is क्रिसमस की एक सुंदर
सुंदरता ये है, God would have sent some angel to minister to you and me. प्रभु अपने कोई दूत को भेज सकते थे तुम्हारी और मेरी अगुवाई करने के God would लिए, have sent some assistant Michael, go and talk to people about me. या प्रभु एक कोई स्वर्गदूत मिकाएल को या किसी को भेज सकते थे हमें नेतृत्व करने के लिए। Hey angel, go and tell my people about my love. अरे स्वर्गदूत जा मेरे प्रेम के बारे में जाके लोगों को तू बता। Tell my people, angel, go and tell my people how my presence is. स्वर्गदूत जाकर मेरे लोगों को बता कि मेरी उपस्थिति कैसी होती Go है। and present my presence, how powerful it is. Angel, go and tell the people. स्वर्गदूत जा लोगों को बता कि मेरी उपस्थिति कितनी भारी है। Hallelujah. Our God is a loving God. We are the image of God. God did not send any angels to assist us. He came in the human flesh. He himself assisted us and told, God is like this. His presence is like this. His power is like this. तो हमारा परमेश्वर एक प्रेम का ईश्वर है, वो खुद स्वयं उतर आए हमारे लिए ये प्रकट करने के लिए और बताने के लिए कि मेरी उपस्थिति ऐसी है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना महान है। Hallelujah. God doesn't want any assistant to minister to us. प्रभु नहीं चाहते कि कोई उसका असिस्टेंट हमें अगुवाई करे। Think about the loving God, सोचो उस प्रेमी परमेश्वर the के बारे caring में, God, वो जो हमारी the ध्यान रखता है, powerful God, वो सामर्थी परमेश्वर, Alpha and the Omega, अल्फा और ओमेगा है, beginning and the end. आदि और अंत He's वही the है, creator of the universe. पूरे संसार का भूमंडल का He had all सृष्टिकर्ता है, power, wisdom in him. जिसके अंदर सारी बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए हैं। Hallelujah. One word, anything can happen. उसके एक शब्द से कुछ भी हो सकता And है, that word, और वो ही शब्द, that's power, वो सामर्थ, that और grace, वो अनुग्रह, that God of hope. वो आशा देने वाले He परमेश्वर, came in the human form वो मनुष्य के रूप में and he आए displayed, I am the love of God. और उन्होंने ये प्रकट करके दिखाया कि मैं परमेश्वर I का प्रेम हूँ। am the invisible, express the beauty of the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं, वो एक अदृश्य, जो अदृश्य ईश्वर है उसका मैं प्रतिरूप The हूँ। very important thing is, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, Jesus took birth on this earth यीशु मसीह ने ये धरती पे जन्म लिया to erase all misconception about the living God. जीवित परमेश्वर के बारे में जो हमारे अंदर गलत फहमियां हैं उसे मिटाने के लिए आए। Because of Jesus, यीशु मसीह के say कारण, with me, because of Jesus, बोलो यीशु के I कारण, am in life in Jesus. मैं लाइफ इन जीसस में हूँ। Now, because of Jesus, यीशु के कारण that woman was sitting at the well. Wow. वो औरत कुएं के पास बैठी हुई थी, Hallelujah, still sitting at the well. वो देखो कुएं के पास बैठी हुई With है, sorrowful, she's fetching the water from the well. बहुत दुखी रूप से बैठकर वहां से कुएं से पानी निकाल रही The है। invisible express the love of God is walking towards the well. वो पिता का प्रेम, वो परमेश्वर का जो अदृश्य प्रेम था वो कुएं के पास आते हैं। Hallelujah. The life is walking towards the well. अभी जीवन वो कुएं के पास जा The रहा है, truth is walking towards the well. सत्य उस कुएं के पास जा रहा है, Everlasting life is walking towards the well. अनंत काल का जीवन उस कुएं के पास चल रहा The है। God who sees the sin and forgives is walking towards the वो well. परमेश्वर जो पाप को देखता है वो उस कुएं के पास जा रहा है। Hallelujah. There was an encounter with that woman. वो औरत के पास में अभी एक मुठभेड़ हो रहा है। Oh, I am not worthy to give you water. मैं तुझे पानी देने के भी योग्य नहीं। See how God speaks to that woman. देखो कैसे प्रभु वो औरत से बात कर रहा Through है, Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। Jesus said, यीशु कहते हैं, woman, ए औरत, if you drink this water, अगर तू ये पानी पिएगी it will never quench your thirst. तुम्हारा प्यास कभी नहीं The बुझेगा, water which I give you, लेकिन जो पानी मैं तुझे देता it हूँ you will never thirst. आप फिर से प्यासे नहीं होगी। What happened? What kind of water Jesus gave to यीशु her? ने कौन सा कैसा पानी दिया उस She औरत had a past. को? उसके पास एक भूतकाल था, God forgiven her past. प्रभु ने उसके भूतकाल को क्षमा किया, She never had a purpose for living, उसको आगे जीने की कोई आशा भी नहीं but थी, Jesus gave the purpose for living. लेकिन यीशु मसीह उसे जीने के लिए एक मकसद दिया। She never had a home in heaven, देखो उसके पास स्वर्ग में कोई घर नहीं था, but Jesus gave heaven to her life to live. लेकिन यीशु मसीह ने जीने के लिए उसे स्वर्ग दे दिया। It is all because of Jesus. ये सब हुआ यीशु के वजह से। The woman at the well says, वो औरत जो कुएं के
के पास कहती My है past is forgiven. मेरा भूतकाल क्षमा हो गया I है, have a purpose for living. I अभी मुझे जीने के लिए एक आशा have a है, home in heaven. अभी मेरे लिए स्वर्ग में घर है। All because of Jesus. सब ये बातें यीशु के कारण हुआ। Turn to somebody and say, all because of Jesus, my past is forgiven. सब कहे यीशु के कारण ही मेरा अतीत बीत चुका है, मेरे पाप It क्षमा हो is गए easy to हैं। say, मेरा अतीत बीत गया. देखो मेरा अतीत बीत गया गाना बहुत ही आसान बात है, And after the song, और गीत गाने के बाद मेरा अतीत शुरू हो गया. फिर मेरा अतीत शुरू हो जाता है। If you stop अगर आप रुकोगे बीड़ी सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पीना God forgive me God, और कहोगे प्रभु मुझे क्षमा कर, I am a बीड़ी smoker, मैं बीड़ी पीता हूँ, I am a cigarette smoker. मैं सिगरेट पीता हूँ, God, today I am in church, लेकिन आज मैं कलीसिया में आया हूँ, forgive me Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। God says तेरा अतीत बीत गया. प्रभु कहता तेरा अतीत बीत गया आज से। बट बाहर जाने के बाद वापस वही सिगरेट पकड़ेगा, अगर बाहर जाने के बाद वही सिगरेट को अगर तुम हाथ में फिर से लोगे तो अतीत बीता नहीं, अतीत याद किया. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.